Good morning, students. Welcome back to the another video. Today we will discuss the next topic, that is methods of preparation of colloids. There are many methods by which colloids can be prepared. So first of all, we will discuss about the chemical methods. In chemical methods, there are many chemical reactions by which the colloids can be prepared. So first of all is double decomposition reaction. In case of double decomposition reaction, H2S gas is passed through the dilute solution of arsenious oxide in water, which will produce the arsenious sulfide sol in the colloidal form. Second is oxidation reactions. We know in case of oxidation, either there is addition of oxygen or the removal of hydrogen. So in this reaction, there is removal of hydrogen from the H2S, which will yield the S, means sulfur in the sol, in the colloidal form. So in case of oxidation, the colloidal sol of sulfur is obtained by bubbling the H2S gas through the solution of sulfur dioxide. Third is reduction reaction. In case of reduction, either there is addition of hydrogen or removal of oxygen. So here, same way, the AuCl3 on reaction with HCHO in the presence of water produces the sol of gold, and HCOOH plus 6HCl is released as a byproduct. Moreover, colloidal sols can also be prepared by hydrolysis. For example, a colloidal solution of ferric hydroxide can be prepared by treating the ferric chloride into the water or with the warm water dropwise, which will yield the ferric hydroxide along with HCl. Next method for the preparation of colloidal solution is electrical dispersion or the Bradig's arc method. This method is used for the preparation of copper, silver, gold, platinums, etc. The metal whose sol is to be prepared is made as two electrodes immersed in the dispersion medium, which is kept cool by surrounding it with a freezing mixture. An electric arc is struck between the electrodes. The tremendous heat which is generated by the arc vaporizes the metal, which are condensed immediately in the liquid to give the colloidal solution. यानी कि जिस मेटल का अपन ने सोल बनाना है, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, कुछ भी मेटल है उसका जिसका अपन सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसको दो इलेक्ट्रोड्स में बना लेना है। उन दोनों को इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में ले लेना है, उन दोनों मेटल्स को, और उन दोनों को डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स कर देना है। दो इलेक्ट्रोड जो हैं उन्हें डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स कर दिया। ये डिस्पर्जन मीडियम को साइड पे अपा फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि आइस बाथ प्रोवाइड कर देंगे। आइस बाथ क्या करेगी, मतलब जो हीट रिलीज होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि जो हमारा ये सेटअप है वो ज़्यादा हीट अप ना हो जाए और वो ब्रेक ना कर जाए। मीन्स हीट को कंट्रोल करने के लिए अपा फ्रीजिंग मिक्सचर डाला है जो हीट रिलीज होगी, ताकि वो उसे अब्जॉर्ब कर ले और मिक्सचर को ठंडा कर दे। तो इट इन्वॉल्व डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। डिस्पर्जन मतलब पहले वो वेपराइज होगा और साथ ही अपना फ्रीजिंग मिक्सचर डाला हुआ है तो इट विल बिकम कंडेंस्ड। In this method, an electric arc is stuck between the electrodes which are immersed in the dispersion medium. जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी वो वेपराइज कर देगी मेटल को और फिर वो कंडेंस हो जाएगी, और वो जब कंडेंस होगी तो वो कौन से पार्टिकल्स बनाएगी, वो पार्टिकल्स बनाएगी जो कि कोलॉइडल साइज के होंगे। मीन्स अपने पास जो पार्टिकल्स बनेंगे दैट विल बी द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ दैट। Third method used for the preparation of the colloidal solution is peptization. It is a process of converting the precipitates into the colloidal solution in the presence of peptizing agents with the dispersion medium. यानी कि इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं यूजुअली, उन प्रेसिपिटेट्स को अपा colloidal solution की फॉर्म में चेंज करेंगे, और वो चेंज किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइजिंग एजेंट।
इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट विल एड्जॉर्ब आपका पढ़ा था, एड्जॉर्ब क्या होगा, सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, विल एड्जॉर्ब वन ऑफ द आयन, दो आयन्स होंगे, यानी कि एक अनायन भी हो सकता है, कटायन भी हो सकता है, उन दोनों आयन्स में से वो कोई भी एक आयन को एड्जॉर्ब करेगा, यूजुअली द कॉमन आयन। अब ये कॉमन आयन का क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। ऑन इट सरफेस, यानी कि पेप्टाइजेशन में क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट है वो अपनी सरफेस पे कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करेगा, जिससे डिवेलपमेंट ऑफ चार्ज एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जिससे क्या चार्ज डिवेल्प हो जाएगा उसकी सरफेस पे, वो पॉजिटिव भी चार्ज डिवेल्प हो सकता है और नेगेटिव भी। सो फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन Ki इज मिक्सड विद एक्सेस AgNO3। इसमें Ki को मिक्स किया है किसमें, AgNO3, इन दोनों में एक्सेस किसको लिया आपका, AgNO3, ये याद रखना है। सो दिस वुड बी द रिएक्शन, Ki इज मिक्सड विद AgNO3 एक्सेस, क्या रिएक्शन होगी, AgI बन जाएगा और यहाँ पे KNO3 बन जाएगा, AgI विच हैज अ येलो प्रेसिपिटेट्स प्लस KNO3। अब एक्सेस में क्या है अपने पास, AgNO3, AgNO3 एक्सेस में है और बन क्या रहा है अपने पास, किसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, AgI के, AgI के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और एक्सेस में AgNO3 है, इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, Ag, तो कौन सा आयन एड्जॉर्ब होगा, अब Ag ion will be absorbed on the surface, okay, so Ag positive ion will be absorbed, तो अब Ag पॉजिटिव है तो कौन सा क्लोराइड बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड, सी AgI पे Ag पॉजिटिव के आयन जो है वो एब्जॉर्ब हो गए और पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड जो है वो बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज AgNO3 इज मिक्सड विद एक्सेस Ki। पहले अपना AgNO3 को एक्सेस में लिया था, अब Ki को एक्सेस में लिया आपका। अब क्या होगा, जब AgNO3 को Ki एक्सेस में मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, AgI बन जाएगा और साथ में KNO3 बन जाएगा। अब AgI की येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, मींस प्रेसिपिटेट्स किसके बने, AgI के, और एक्सेस में कौन सा है, Ki, इन दोनों में कॉमन आयन इज I, तो I नेगेटिव इज अ कॉमन आयन, तो ये I नेगेटिव के आयंस जो हैं वो एड्जॉर्ब होंगे सरफेस पे ऑफ द प्रेसिपिटेट्स की, तो AgI पे कौन सा आयन एड्जॉर्ब होगा, I नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा सोल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज सोल जो वो है वो बनेगा। नेक्स्ट इज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। Helmholtz electrical double layer is a double layer of positive and negative charges on one molecule which occurs at the surface when two different materials are in contact. इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से अपन इसे देखते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्सड विद एक्सेस Ki। एक सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसे एक्सेस Ki में मिक्स किया तो क्या बनेगा, AgI बनेगा, Ki एक्सेस में और AgI के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, कॉमन आयन कौन सा है, I, तो I नेगेटिव जाके AgI पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये जो I नेगेटिव होगा जो एड्जॉर्ब होगा वो पहली लेयर बनाएगा एड्जॉर्प्शन की AgI के ऊपर। ये जो फर्स्ट लेयर है दैट इज एड्जॉर्प्शन लेयर एंड इट इज़ अ फिक्स्ड लेयर होगी उसके ऊपर। अब ये जो Ki है यही टूटेगा K पॉजिटिव और I नेगेटिव में, ताकि I नेगेटिव जो है वो जाके एड्जॉर्ब हो जाए। अब I नेगेटिव तो जाके एड्जॉर्ब हो गया, K पॉजिटिव भी तो उसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये K पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन विद द I नेगेटिव विल फॉर्म द अनदर लेयर दैट इज द सेकेंड लेयर, और दिस लेयर इज ड्यू टू द अट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज अ अट्रैक्शन लेयर और इट इज़ अ मूविंग लेयर, मोबाइल लेयर और डिफ्यूजन लेयर। इसमें क्या होगा, जो ये लेयर बनाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है I नेगेटिव और K पॉजिटिव की आपस में दोनों में, तो K पॉजिटिव I नेगेटिव के पास चला जाएगा और एक लेयर बना लेगा I नेगेटिव के ऊपर, मीन्स वो सेकेंड एड्जॉर्प्शन लेयर बना लेगा। अब ये जो K पॉजिटिव है वो जो लेयर बनाएगा वो एक मूविंग लेयर होगी, फिक्स्ड लेयर नहीं होगी, क्योंकि वो जो लेयर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बनी है, तो इसलिए वो एक मोबाइल लेयर होगी जो कि मूव कर सकती है। सिमिलरली व्हेन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्सड विद Ki, AgNO3 Ki के साथ एक्सेस में मिक्स किया तो AgI बनेगा। अब एक्सेस में AgNO3 है तो कॉमन आयन इज Ag,
Ag पॉजिटिव जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी कि वो फर्स्ट लेयर बना लेगा। अब बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन I नेगेटिव जो है वो Ag पॉजिटिव के पास जाएगा और सेकेंड लेयर बना लेगा, विच विल बी द अट्रैक्शन लेयर और विच इज अ मूविंग लेयर, वो फिक्स्ड लेयर नहीं होगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड लेयर दैट इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल layer. Next is zeta potential. If we talk about zeta potential, it is also known as electrokinetic potential. इसे electrokinetic potential भी बोला जाता है। ये जो potential difference बनेगा फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में। Next is purification of colloids. प्योरिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द क्लोइडल सोल्यूशन, यानी कि जो क्लोइडल सोल्यूशन अपने पास बना है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना क्या कहलाएगा? प्योरिफिकेशन। दिस प्योरिफिकेशन कैन बी डन इन 3 ways, दैट इज बाय डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. So the first method for the purification of the colloidal solution is dialysis. The apparatus in which the dialysis takes place is known as dialyzer. That is, apparatus used for this process is called dialyzer. So what is dialysis? Dialysis होता क्या है? It is basically the process of removal of impurities from the colloid via diffusion through the membrane. यानी कि प्योरिफिकेशन करनी है आपका क्लोइडल सोल्यूशन की। वो प्योरिफिकेशन क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। प्योरिफिकेशन कैसे होगी? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके। तो ये इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करना है, वो उसके अलग अलग मेथड्स होंगे, तो वो अलग अलग मेथड ही प्योरिफिकेशंस के अलग अलग मेथड बनेंगे। सो इन दिस डायलिसिस जो रिमूवल होगी इम्प्योरिटीज़ की क्लोइड्स में से, वो कैसे होगी? थ्रू द डिफ्यूजन फ्रॉम द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूजन करवाएंगे उसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाएंगी और उस प्रोसेस को अपन डायलिसिस बोलते हैं। अब ये मेम्ब्रेन कौन कौन सी हो सकती हैं? दैट कुड बी द एनिमल मेम्ब्रेन, दैट इज ब्लैडर, और इट कैन बी द पार्चमेंट मेम्ब्रेन और द सेलोफेन शीट भी हो सकती है। See this diagram. In this, the colloidal solution is taken in the bag which is made up of the cellophane sheet or the animal membrane. This colloidal solution which is taken in the bag is suspended in the fresh water. The impurities which are present in this colloidal solution will diffuse out from the bag slowly and thus leaving the pure colloidal solution inside the bag. And this distilled water is continuously being changed, and from here the water will get removed. In this way, this process will go on moving. Next method of purification is electrodialysis. जो डायलिसिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो उसे फास्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज़ क्वाइट स्लो. इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर है, लेकिन साइड पे आपा क्या लगाती? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एनोड कैथोड लगा दिया और उसे करंट सप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, और इलेक्ट्रोडायलिसिस जो अब होगी वो थोड़ा फास्टर रेट पे हो जाएगी. थर्ड मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. In this method, a special filter paper is used for the removal of impurity. Impurities को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर यूज़ करती हैं. तो ये स्पेशल फिल्टर पेपर बनेगा कैसे? दिस स्पेशल फिल्टर पेपर इज मेड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन द क्लोइडियन सोल्यूशन. अब ये क्लोइडियल सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 4% नाइट्रोसेल्यूलोज विद अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. यानी कि एक मिक्सचर ले लिया जिसमें अल्कोहल और ईथर है, उसमें 4% सोल्यूशन डाल देना नाइट्रोसेल्यूलोज का. दैट विल फॉर्म द क्लोइडियन. तो ये क्लोइडियन सोल्यूशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करके रख देंगे. जब वो सोक कर लेगा उसके बाद उसे हार्डन किया जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से, और फाइनली उसे ड्राई कर दिया जाएगा. दैट विल फॉर्म द स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर पेपर, और उसमें से जब इम्प्योरिटीज़ को पास करेंगे तो हमारे पास प्योर क्लोइडियन सोल्यूशन जो है वो
बन जाएगा। The next topics, that is properties of colloids and emulsions, we will cover in the next video. The link of the next video will be available in the description box. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.